नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर बंगाल में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती और 48 मरीजों में से 34 मरीज हुए स्वस्थ। उत्तर बंगाल में जहां एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ अच्छी खबर यहां है कि स्वस्थ होने वालों की दर काफी अच्छी है। कुल 48 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 34 मरीज मंगलवार तक स्वस्थ हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यहां एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो कोरोना से लड़ने में काफी मददगार साबित होगा। कोरोना से मुकाबले के लिए दायित्व प्राप्त ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर सुशांत रॉय ने बताया कि उत्तर बंगाल में मरीजों के ठीक होने का दर काफी अच्छा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रेरणा से स्वास्थ्य विभाग काफी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है और इसी का नतीजा है कि काफी संख्या में मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी अच्छी बात है कि मरीज जल्द ठीक हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है और न ही इसको लेकर अफवाह फैलाने की जरूरत है तो किसी में संक्रमण का लक्षण पाया जाता है तो उनकी जानकारी दे, ताकि उनका इलाज किया जा सके जितनी जल्दी हो सके। আপনারা জানেন হয়তো যে আমি সারা নর্থ বেঙ্গল ঘুরে বেরিয়েছি, বসে বেরিয়েছি। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিস্ট্রিক্ট সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওখানকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সকলের সঙ্গে মিটিং করেছি। আমি তাদের মধ্যে জিনিসটা কী সে সম্বন্ধে বোঝানো গেছে, কার কার কী কী কাজ আছে, কীভাবে আর সরকার তাদের কাছ থেকে হেল্প পেতে পারে সে সমস্ত করা হয়েছে। আমার যেমন ছিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বসা, মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি, এখানে অলরেডি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার, এনাদের সঙ্গে বসেছি, ওদেরকে বুঝিয়েছি কী কী করণীয়। সবাই সব কিছুই জানেন, কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে সরকার কী আশা করছে সেটাও আমাদেরকে জানানো হয়েছে। এরপরে যেমন আমরা বিভিন্ন নার্সিংহোম মালিকদের সঙ্গে বসেছি, নার্সিংহোমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসেছি। আমরা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কী কী চাই, কী কী আশা করি, মানুষ কী চায় সেটা আমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে প্রচুর এনজিও দিনের পর দিন ধরে মানে কাজ করতে বেড়াচ্ছে। তো এবং আমরা এনজিও থেকে ডেকেছি। আসলে গভর্নমেন্ট থেকে অনেক সময় হয় না, এটা কমিউনিকেশন গ্যাপ হলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। আমরা এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে আমরা সারা উত্তরবঙ্গে, আমি দায়িত্ব নিয়েছি উত্তরবঙ্গের কথা বলছি, যে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে আমরা কী কী করছি। তাহলে কী হবে, ওনাদের জায়গাটা বুঝতে সুবিধা হবে এবং ওনাদেরকে বলেছি আপনারা আমাদেরকে কীভাবে হেল্প করতে পারেন। আমরা আমাদেরকে কিছু কিছু পয়েন্ট বলেছি, আপনারা দেখুন, যদি এগুলো চিন্তাভাবনা করে যে আপনারা এগুলো আমাদের হেল্প করতে পারেন, ভেরি গুড, তাহলে আমাদেরকে জানাবেন, তাহলে আমরা সেই হিসেবে বন্দোবস্ত করব। সুতরাং সবাইকে নিয়ে চলো, আগামী দিনেতে আপনারা দেখবেন হয়তো আগামীকাল আমি শিলিগুড়িতে বসবো এনজিওদের সাথে, দার্জিলিংয়ে বসবো, আগামীকাল দার্জিলিংয়ে বসবো, পরশুদিন শিলিগুড়িতে বসবো, তারপরের দিন আমরা এখানে জেলা পরিষদের সঙ্গে বসছি, বিভিন্ন পঞ্চায়েতদের নিয়ে আমি বলেছি ডিএম সাহেবকে অ্যারেঞ্জ করার জন্য। এইভাবে কিন্তু আমরা একদম গ্রাসরুট লেভেলে সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করছি। শুধুমাত্র হেলথ ডিপার্টমেন্ট, শুধুমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু সব কিছু পারবে না। যখন এত লোকজন ঢুকে আসছে তখন আমাদের প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে। এনজিওদের মধ্যে থেকে একটা কথা উঠে এসেছিল, তাদেরও লালারস পরীক্ষা যদি করা হয় একটু অনুরোধ ওনারা করেছিলেন, সেই বিষয়টা তারা কাজ করছেন। এটা তো প্রথম থেকেই বলে এসেছি, আমরাই প্রথম থেকে বলে এসেছি, যার ফ্রন্ট লাইন। আমি আপনাদেরকেও বলেছিলাম যে আপনারা জানেন যে পুলিশদের মধ্যে থেকে প্রায় 200 মতন আমাদের অলরেডি সব টেস্ট হয়ে গেছে। আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে বলেছি, প্রেস আপনাদেরকেও বলেছি, চিকিৎসা কর্মীদেরও বলেছি, প্রত্যেকের তো চলছে। এবার ওনাদেরকেও বলেছি, ওনারা ডেফিনেটলি ওনাদেরকে বলে দেওয়া আছে আপনারা কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করুন, করলেই পরে আপনাদের করা হবে। শুধু একটা সপ্তাহ আমাদের গ্যাপ দিতে বলেছি, কারণ এই সপ্তাহটা যেহেতু নর্থ বেঙ্গলে যে অনেক জমে গেছে, এই সপ্তাহটা আমরা একটা গ্যাপ দিয়ে নেক্সট উইক থেকে আমরা আবার অসুবিধা কিছু নেই। তারা কী ধরনের কাজের জন্য আপনারা বললেন, কী ধরনের কাজ তারা করতে পারবেন বা করবেন বলে মনে হয়, কী পারবেন? যদি ভাবেন একটা, দেখুন, প্রথম হচ্ছে যে যারা মাইগ্রেটরি লোকজন আসছেন তারা বাড়িতে ঢুকতে পারছে না, পাড়ায় ঢুকতে পারছে না, গ্রামে ঢুকতে পারছে না। এটা একটা খুব কষ্টকর দিক, এটা হওয়া উচিত না। আমাদেরই কেউ ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন কেউ না কেউ আসছে। 2 महीने से बंद के बाद आज से एनबीएसटीसी ने शुरू की बस परिसेवाएं। रायगंज डिपो से विभिन्न रूटों के लिए बसें हुई रवाना। करीब 2 महीने के बाद उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम एनबीएसटीसी की बस सेवाएं स्वाभाविक हो गई है। बुधवार को एनबीएसटीसी रायगंज से सिलीगुड़ी, कोलकाता, बालूरघाट, मालदा सहित राज्य के विभिन्न जिलों के लिए बसें रवाना हुई। सामाजिक दूरी का पालन, मास्क लगाकर बस इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें परिसेवा शुरू हुई। प्रत्येक बस में 25 यात्रियों को बैठने की अनुमति है। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने तक आवाजाही पूरी तरह से ठप थी। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बाद अब यात्री ट्रेनों को चलाने की तैयारी रेल मंत्रालय कर रही है।
इस बीच पूरे एहतियात के साथ घरेलू विमान सेवा भी शुरू हो गई है। 2 महीने के बाद से अब NBSTC बस परिसेवा आज से शुरू कर दी गई है। हालांकि देश के विभिन्न भागों से आए मजदूरों को राज्य के दूसरे हिस्से में उनके घर तक पहुंचाने के लिए बीते 9 मई से ही NBSTC बसें परिसेवाएं दे रही है। NBSTC से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार से बस परिसेवा स्वाभाविक हो रही है। सभी बसों को एक साथ सड़क पर नहीं उतारा जा रहा है, लेकिन हर रूट पर 1-2 बसों को दौड़ाने का निर्णय लिया गया है। बल्कि 27 मई से NBSTC की बस परिसेवा शुरू करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। মন খারাপ না, একটু খারাপ লাগছিল বাড়ির জন্য। এখানে আমার ছোট পিসির বাড়ি আছে, পিসির বাড়িতে ছিলাম। আমার তো ভালোই লাগলো, মানে ভালোই লেগেছে। আজকে বাস ছাড়লে যেতে পারছি বাড়ি, ভালোই লাগছে। লকডাউনের পরে প্রায় 2 মাস উপর হবে। 2 মাস পরে ডিউটি করতে পেরে কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। প্যাসেঞ্জার হয়েছে 5-7 জন হয়েছে। কতজন করে দিতে হবে প্যাসেঞ্জার? বলেছে তো 20 জন 25 জনের উপর নেওয়া যাবে না। মাস্ক দিয়েছে, স্যানিটাইজার দিয়েছে, কিট দিয়েছিল। গরমে পড়তে অস্বস্তি লাগে জন্য করি। আজকে আমাদের রায়গঞ্জ ডিপো থেকে মোট 6খানা গাড়ি আজকে রান করা হবে। এটা সরকার নির্দেশ এসছে। শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, রাত্রে রকেট কলকাতা, চাচল, মালদা, বিন্দুল, এই সমস্ত রুটগুলোতে আজকে 25 জন সর্বাধিক যাত্রী নিয়ে শুরু হবে এবং আমরা প্রত্যেকটা যাত্রীকে আমরা থার্মাল স্ক্রিনিং করে গাড়িতে ওঠানোর ব্যবস্থা করেছি এবং স্টাফদের সুরক্ষার জন্য তাদেরকে স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লাভস এই সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করেছি। আশা করছি যে আগামী দিন থেকে প্যাসেঞ্জারটা আরও বেশি হবে। আজকে কিছু প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাত্রা শুরু হয়ে গেল অলরেডি। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार ही बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन 4.0 शुरू कर दी गई है। इस बीच राज्य सरकार के द्वारा भी गाइडलाइंस जारी कर कार्यों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इस बीच कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हिमालयन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा आगामी 15 जून तक दार्जिलिंग में यात्री वाहक टैक्सी वाहनों को नहीं चलाने का निर्णय किया गया है। उक्त विषय में आज दार्जिलिंग में पत्रकार सम्मेलन कर कमेटी के सभापति SN प्रधान ने जानकारी दी है। यो जुन प्रकारको अहिले यो असर बढिरहेको छ, साथै लकडाउन पनि अहिले चलिरहेको छ, त्यस विषयमा अब हाम्रो दायित्व के हुन्छ र आउने दिनमा हामीले के काम गर्नुपर्छ र हामी गाडी कुन प्रकारले चलाउनु पर्छ या सक्दैन र समस्त पहाडलाई बचाउनको लागि हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले कस्तो भूमिका निभाएर यो पहाडलाई बचाउन सक्छ भन्ने उद्देश्य लिएर आज हामीले एउटा मिटिङ राखेको थियौँ र सोसियल डिस्टेन्सिङको पुरा मेन्टेन गरिकन हामीले सबै कुरो कोभिड-19 को प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर आज हामीले सभा गरिरहेका छौँ र सर्वप्रथम आज लिएको निर्णयहरूमा बेसी लामो म लिन चाहन्न। जति यो लकडाउन पिरियड अहिले 31 तारिकसम्म चल्दैछ, यसमा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले पुरा समर्थन जनाएर जिटिएलाई पनि र यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि एउटा सपोर्ट गरेर आइरहेको छ। तर अहिलेको स्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले गाडी घोडा अलि चलाचल भए पनि हाम्रो पहाडमा हामीले के देख्यौँ, कारण म अब स्वयं पनि यो यसमा इन्भल्भ भएर चारैतिर काम गरेकोमा हाम्रो यो एरिया रेड जोन त भयो, तर मान्छेलाई रेड जोनमा कुनै प्रकारको फिलिङै छैन। रेड जोन हुँदाखेरि नि मान्छे ग्रिन जोन जस्तो भएर अब घुमफिर गर्न थाल्यो। सिक्किमले अब धेरै उ गर्थ्यो कि हाम्रोमा 0 उयो छ, केस छ भन्ने कुरा थियो, अब अहिले 1 मा चढिहाल्यो। अब बोनी भएपछि अब निश्चय नै त्यो अलिअलि अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन केले बढेर जान्छ र यो हाम्रो पहाडलाई बचाउनको लागि चाहिँ आज हामीले एकदम कठोर हामीले एउटा निर्णय लियौँ कि जति पनि अब हाम्रो यो पहाडमा गाडीहरू छ, अब हामी यो गाडी चाहिँ अब यो 31 तारिक लकडाउन तुरे पश्चात पनि 15 तारिक जुन 2020 सम्म हामी यो लकडाउन समस्त गाडीहरू बन्द राख्नेछौँ। भारत में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,387 नए मामले, 170 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या पहुंची 1.51 लाख के पार। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना फ्लाइट्स में मिला कोविड-19 पॉजिटिव। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,387 मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौतें हुई है।
देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,51,767 हो गई है। इसमें से अब तक 64,425 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल 4,337 लोगों की जानें जा चुकी है। देश में जानलेवा महामारी के 83,004 एक्टिव केसेस है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 54,000 को पार कर गई है और अब तक 1,792 लोगों की मौतें हो चुकी है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस विमान के सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया है। उत्तर भारत में पड़ रही है भयानक गर्मी। चूरू में पारा 50 डिग्री पहुंचा। दिल्ली और हरियाणा में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है, लेकिन राजस्थान के चूरू की जमीन पर मंगलवार को जैसे सूरज खुद उतर आया। लू की चपेट के बीच यहां दिन का तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 10 साल में मई के माह में यहां दूसरा मौका था कि जब सबसे अधिक तापमान रहा। इससे पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। दिल्ली में भी इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली और हरियाणा में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंडीगढ़ में सुबह से झुलसाने वाली गर्मी पड़ने से मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, गंगानगर, कोटा और जयपुर में अधिकतम तापमान क्रमशः 47.4 डिग्री, 47 डिग्री, 46.5 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में अगले 24 घंटे में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं हरियाणा, विदर्भ, पश्चिमी व पूर्व मध्य प्रदेश रेड अलर्ट जारी कर दी गई है। विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक अगले 2 दिन तक हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में लू चलती रहेगी। टिड्डी दल दिल्ली के करीब पहुंचा। कई राज्यों में हाई अलर्ट। सीमावर्ती राज्यों से टिड्डी दलों का हमलावर दल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा तक चढ़ गया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों में टिड्डी दलों के हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। टिड्डी दलों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम में गर्मी के प्रकोप से इनका हमला और तेज हो गया है। देश टिड्डी दलों के प्रकोप को काबू पाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ भारत ने टिड्डी उन्मूलन के इस ईरान व अफगानिस्तान को भारत ने मदद देने का भरोसा दिया है, लेकिन इसके लिए प्रभावित क्षेत्रीय देशों की बुलाई बैठक में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी की मांग में ऑल इंडिया डीएसओ ने तेज किया आंदोलन। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी एवं विद्यार्थियों के पठन पाठन की व्यवस्था करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया डीएसओ ने आंदोलन तेज कर दिया है। संगठन की ओर से मंगलवार को इन मांगों को लेकर कदमतला मोड़ इलाके में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों ने 2 महीने से अधिक चल रहे लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक को तत्काल घर वापसी लाने की मांग की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने दूसरे राज्य में फंसे विद्यार्थियों व घर वापसी के लिए परिवहन का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने की भी मांग की। ऑल इंडिया डीएसओ के जिला सचिव श्यामल दास ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में काम करने गए बंगाल के श्रमिक वहीं फंस गए हैं। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, आज सरकार से दूसरे राज्य में फंसे श्रमिकों एवं विद्यार्थियों को जल्द से जल्द घर वापसी व विद्यालयों द्वारा स्कूल फीस माफ करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मात्र जलपाईगुड़ीते नয়, প্রত্যেকটা জায়গাতে আজকে আমরা প্রকৃতিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ফলে বন্ধুগণ, আমরা চাইছি সরকার অবিলম্বে এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং পরিবহনের ভাড়া যাতে ফ্রিতে করে সেই বিষয় নিয়ে আমরা অল ইন্ডিয়া ডিএসও পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের এই লকডাউন পিরিয়ডে প্রচুর মানুষের আর্থিক অভাব অনটন দিনের পর দিন বাড়ছে। পাশাপাশি আমরা এটাও দাবি জানাচ্ছি যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ফি মুকুব করতে হবে। এই দাবি নিয়ে আমরা আজকে কদমতলা মোড়ে এই কর্মসূচি নিয়েছি এবং এরকম কর্মসূচি অন্যান্য এলাকাগুলিতেও চলছে। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस्लामपुर में दो गुटों में संघर्ष, कई लोग घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने की गोविंदपुर ग्राम पंचायत इलाके में मंगलवार को दो गुटों में हुए संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। संघर्ष के दौरान हुई गोलीबारी में घायल एक व्यक्ति को इस्लामपुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने खुद बताया, संघर्ष के दौरान हुई गोलीबारी में वे घायल हुए हैं। दूसरी ओर SP सचिन मक्कड़ ने बताया कि संघर्ष के दौरान गोली चलने की घटना उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गौरतलब है कि सोमवार को मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर दो गुटों में विवाद शुरू हुआ। बाद में इसे लेकर दो गुटों में संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष में घायल एक व्यक्ति को गंभीर हालत में इलाज के लिए सिलीगुड़ी भेज दिया गया है। इसका नाम तैयब अली बताया जा रहा है। दूसरी ओर इस्लामपुर महकमा अस्पताल में कई घायलों को भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती मोहम्मद जाहिद रेजा ने बताया कि संघर्ष के दौरान उन्हें गोली लगी है। वह अस्पताल में चिकित्सा कराने आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इलाके में कुछ बदमाशों उन्हें अस्पताल आकर धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अचानक 25 से 30 लोग उनके घर पर हमला बोल दिया। पुलिस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। আমরা মানে দুই তিনজন ছেলে আমাদের ওখানে একটা রাস্তার ওখানে মানে ব্রিজ আছে, ওখানে বসেছিল। এবার ওরা ওখানে বসেছিল, ওখান থেকে ওরা পজিটিভ জন্য প্ল্যানিং করে ভুট্টার বাইরে থেকে এসে চারদিকে ঘিরে ওদের পিটাতে শুরু করে দিয়েছে। কারা? ওই যে ওখানে ছিল গুলজার ছিল, রমজান ছিল, দল্লু ছিল, আর কি বলবো ওদের মিলি বসতে দুষ্কৃতি, খুবই ডেঞ্জারাস দুষ্কৃতি। এর আগে বোম ব্লাস্ট করছিল, আমাদের বোম ব্লাস্টের কোনো আসামি ধরা হয়নি। সেম কেস এখন আমি ওখানে গিয়েছি, শুনলাম ওই অবস্থাতে গিয়েছি, লুঙ্গি পরে কি হয়েছে ভাই, দাঁড়াও কি হয়েছে কথা শোনো। আমি গিয়েছি, পট করে ফায়ারিং করে দিয়েছি। ফায়ারিংটা আমার পায়ে গুলি লাগছে। গুলি মোটা হয় দুজনে লাগছে। पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी ने मालदा में तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। उन्होंने बताया, सरकार तूफान प्रभावितों के साथ खड़ी। राज्य के सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी ने मंगलवार को हाल ही में मालदा जिले में चक्रवर्ती तूफान से हुए नुकसान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मालदा कलेक्ट्रेट में कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने अहम बैठक की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में आए चक्रवर्ती तूफान अफमान के बाद सोमवार दोपहर को अचानक मालदा में आई काल बैसाखी से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। कल आंधी व तूफान के साथ हुए वज्रपात में 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं चक्रवर्ती तूफान से खेतों में लगी फसल व मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। आंधी व तूफान के साथ हुए वज्रपात में 2 लोगों की मौतें हुई है। वहीं चक्रवर्ती तूफान से खेतों में लगी फसल व मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। चक्रवर्ती तूफान व वज्रपात से हुए नुकसान का जायजा लेने सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी मालदा में जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस विषय पर उन्होंने अधिक जानकारी भी दी है। আমফান ঝড় হলে একটা সুন্দরবন এলাকায় যে প্রবল তাণ্ডব গেছে, সেই বেশিরভাগটাই হচ্ছে জঙ্গল, এবং সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রায় 132 কিলোমিটার মতো নাইলন ফেন্সিং, যেটা দিয়ে রাখতাম আমরা যাতে বাঘ বেরিয়ে না আসতে পারে বা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে। প্রায় 180-র মধ্যে 132 কিলোমিটারের মতো নাইলন ফেন্সিং আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও আমাদের লোকেরা চেষ্টা করছে যেটুকু অক্ষত আছে সেটুকু ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দিতে। এর বাইরে 1600 স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে এন্টায়ার বন জঙ্গল সারা বাংলার মধ্যে যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা এটা একটা মোটামুটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়েছি। এছাড়া আমাদের রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস, ক্যাম্প অফিস যেগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রায় কারোর চাল, কারোর জলের ট্যাঙ্ক, কারোর ছাদ, হ্যাঁ, কোথাও আমাদের টাওয়ার ইত্যাদি সব নানা রকমভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমাদের এমব্যাঙ্কমেন্টের ক্ষতি হয়েছে যেগুলো একদম জঙ্গলের মধ্যে থাকে। কিছু আমাদের ওই জেটির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেটা এগুলো সব একটা আমাদের অ্যাসেসমেন্ট চলছে। এই সপ্তাহের মধ্যে ফাইনাল রিপোর্ট আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জমা দেব। না, এটা কোনো মিটিং অফিসিয়ালি নয়, এটা এসছি ন্যাচারালি। আমি তো একজন দলীয় কর্মী, ন্যাচারালি দলের সকলের সঙ্গে একবার মিলিত হলাম, এবং বিশেষ করে গতকালকে ঈদ গেছে, ঈদের পরে একটা মানে মিলনই বলতে পারেন, সবাইকে নিয়ে একটা মিষ্টি মুখ করার জন্য। আর কোনো অফিসিয়াল কোনো মিটিং নয়, একটা দলীয় কর্মী নেতৃত্বের সঙ্গে একটা আলাপচারিতা এবং একটু মিষ্টি মুখ হলো ঈদের পরে। ডেফিনেটলি আমফানের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা কিভাবে কি হয়েছে, কতটা কি করা যায়, এটা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আমরা বৈঠক। দুটো ক্ষতি, একটা হচ্ছে আমের এখানে আমটা বড় আর একটা চাষেরও ক্ষতি হয়েছে, তো দুটো নিয়ে আমরা অলরেডি যাবো। আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন দেবে, ডিএম এর সাথে কথা বলবো,
এবং কথা বলে আমাদের জনপ্রতিনিধিরাও থাকবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে। তারপরে এখান থেকে আমি প্রাথমিক রিপোর্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দেবো। এর সামনে প্রশাসক কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি ইংলিশ বাজার এবং মালদা প্রশাসক নিয়োগ হচ্ছে, তার মধ্যে ওরা জানছে এই বিষয়ে কতটা আমি বুঝলাম না আবার তার সাথে কি বললে? না, আমি সেটাই বলছি যে এখানে মালদার ক্ষেত্রে যে আরো অনেক প্রশ্ন উঠছে অন্য पश्चिम बंगाल में वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या पहुंची 4000 के पार। 24 घंटे में संक्रमण के 193 नए मामले सामने और 5 की मौत। मृतकों की संख्या 211 पहुंची। पश्चिम बंगाल में वैश्विक महामारी कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से और 5 लोगों की मौतें हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 211 लोगों की मौतें हो चुकी है। इस दौरान संक्रमण के 193 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 4009 लोग इसके चपेट में हैं। इनमें से 2240 एक्टिव केसेस है। केवल एक दिन में 116 एक्टिव केसेस की पहचान की गई है, जिनका इलाज राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मरने वालों में कोलकाता के 2, हावड़ा मुर्शिदाबाद के एक मरीज शामिल है। राज्य में अब तक 1486 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। एक दिन में 72 मरीजों को कोरोना मुक्त होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। बुलेटिन में यह दावा किया गया कि राज्य में अब तक कुल 1,57,277 लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं। केवल मंगलवार को 9,228 लोगों के नमूने जांच की गई है। प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच दर सोमवार को 1,645 के मुकाबले मंगलवार को बढ़कर 1,748 व्यक्ति हो गई है। विभाग का दावा है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 37.06% है। इधर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने बुलेटिन में कहा है कि राज्य के विभिन्न सरकारी क्वारंटाइन सेंटरों में फिलहाल 18,146 लोग हैं। राज्य में फिलहाल 1,03,564 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। दुनिया में थमने का नाम नहीं ले रही है कोरोना वायरस। अब तक 56.83 लाख मामले सामने। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार। दुनिया में अब तक 56,83,802 लोग कोरोना संक्रमित है। 24,30,527 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,52,200 पहुंच गया है। उधर अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो गया है। यहाँ दुनिया की किसी भी देश में सबसे ज्यादा मौतें हैं। वहीं जर्मनी में महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर 10 लोग तक ही जमा हो सकते हैं। देश में 1.81 लाख संक्रमित है, जबकि 8,498 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत चीन सीमा पर बढ़ता ही जा रहा है तनाव। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने पर अडिग भारत गतिरोध से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। तनाव का आलम यह है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत की सेना फिर एक बार आमने सामने है। भले ही चीन ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, मगर अब भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है और इसने चीनी सेना के बराबर अपनी सेना तैनात कर दी है। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। पीएम ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी और पेंगोंग झील इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा विभाग के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की। सीडीएस रावत ने लद्दाख में पीएम मोदी को सैन्य स्थिति का अवगत कराया और स्थिति को संभालने के सुझाव दिए हैं। पुण्यतिथि पर पंडित नेहरू को पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्र भारत के पहले और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, पुण्यतिथि पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहादुर स्वतंत्र सेनानी, आधुनिक भारत के निर्माता और हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश के बड़े संस्था दिए जो वक्त पर हमारे काम आ सके। भारत के इस महान सपूत को उनके पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। गरीब और जरूरतमंदों में बांटी गई खाद्य सामग्री, बच्चों को मिले दूध, वृद्धजनों को दवाइयां। डूअर्स एजुकेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट सोसाइटी नामक स्वयंसेवी संस्था की ओर से लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब व जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री व बच्चों के लिए दूध, वृद्धजनों के लिए दवाई प्रदान की गई। जलपाईगुड़ी की पहाड़पुर ग्राम पंचायत के पातकाटा कॉलोनी में गरीब व असहाय लोगों की संस्था की ओर से चावल, दाल, आलू समेत विभिन्न खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। इस बीच मास्क भी प्रदान किया गया। इसके अलावा घरों में छोटे बच्चे हैं, उन्हें बेबी फूड, गर्भवती महिलाओं के लिए माता केयर सप्लीमेंट, वृद्धजनों के लिए फल व दवा बांटी गई। संस्था के इस अभिनव प्रयास से इलाके के लोग काफी खुश दिखे। আমরা ডিটসের উদ্যোগে করছি, ডুয়ার্স এডুকেশন এন্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে করছি। আমরা এটা ৫ম ক্যাম্প, আমরা পাতকাটায় আসছি আজকে। তো পাতকাটায় আমরা প্রথমবারই আসছি।
আমরা অ্যাকচুয়ালি আগে সেখানে একটু সার্ভে করে গেছি যে কোনো বাড়িতে যদি এজেড লোক থাকে, বয়স্ক লোক থাকে, তাদের জন্য ফল, কোনো ওষুধও আনতে পারছে না লকডাউনের জন্য, তাদের জন্য ওষুধ এনে দিচ্ছি। বাচ্চা থাকলে পরে বেবি ফুড নিয়ে এসে দিচ্ছি। যদি কোনো আপনার প্রেগনেন্ট মহিলা থাকে তার জন্য মাদার সাপ্লিমেন্ট কিছু দিচ্ছি। বাকি এই বেবি ফুড বা ফল ওষুধ বাদ দিয়ে আর কি কি দিচ্ছেন? নিত্য সামগ্রী, কিছু খাদ্য সামগ্রী? আমরা চাল দিচ্ছি, তেল দিচ্ছি, ডিম দিচ্ছি। আজকে 40 জনের মতন দিচ্ছি। দেখে যাব, তারপরে 2-4 দিন পরে এসে আবার দেবো। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।